اور یہاں آپ کو بتائیں کہ بسنت کا 3 روزہ میلہ اپنے جوبن پر آسمان پر رنگوں کی چادر بچھ گئی۔ لاہور میں ہوا تھم گئی، گڈے آسمان سے واپس زمین پر، پتنگ بازوں کو پیچ لڑانے میں شدید مشکلات کا سامنا۔ ہوا کب چلے گی، نظریں آسمان پر ٹکی ہیں۔ مزید جانتے ہیں، عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عرفان، بتائیے گا۔ لاہور میں آج بسنت کا پہلا دن اختتام پذیر ہو رہا ہے، لیکن لاہور میں ہوا نہ ہونے کی وجہ سے جو پتنگ باز ہیں وہ کافی ڈسہارٹ بھی ہیں، کیونکہ آپ کو چھتوں کے اوپر عوام کا ایک جمع کثیر تو نظر آ رہا ہے، لیکن ہوا میں اور آسمان کے اوپر جو پتنگیں ہیں وہ نظر نہیں آ رہی۔ اس کا مظاہرہ ابھی ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے۔ ابھی یہ ایک گڈا ہے، اس کو اڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیسا اڑتا ہے۔ جی آپ نے دیکھا کہ لاہور میں ہوا نہ ہونے کی وجہ سے پتنگ باز کس قدر ڈسہارٹ ہیں، اور یہ 1.5 توے کا بڈھا اس وقت وہ بھی ہوا میں نہیں اڑا، اور اسی وجہ سے آپ کو فضا میں پتنگیں نظر نہیں آ رہی، لیکن لاہور شہر کی چھتوں کے اوپر آپ کو عوام کا جمع کثیر ضرور نظر آئے گا۔ بہت شکریہ عرفان ملک اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بسنت کا 3 روزہ میلہ اپنے جوبن پر، آسمان پر رنگوں کی چادر بچھ گئی۔ لاہور کی بلند و بالا عمارتیں، اندرون شہر کی تنگ گلیاں، ہر جگہ پتنگ بازوں کا قبضہ۔ کوئی ڈور سوتنے میں لگا ہے تو کوئی پنا تھامے پیچ لڑا رہا ہے۔ شہر کی چھوٹی بڑی عمارتوں پر گڈے گڈیوں کے پیچ، پریاں آسمان پر ناچنے لگی، گڈے بھی پیچ لڑانے میں مصروف۔ شہر کی ہواؤں میں مخصوص سرسراہٹ لوٹ آئی۔ حکومت پنجاب کی جانب سے 2 دہائیوں کے بعد بسنت کے 3 روزہ تہوار کی اجازت دی تو ہر کوئی اس تہوار کو بڑھ چڑھ کر منانے کو بےتاب ہوا، اور بسنت کے پہلے روز خواتین، بچے اور مرد سب کے سب پتنگ اور ڈور لے کر اپنی اپنی چھت پر پہنچے۔ فضا بو کاٹا کے نعروں سے گونج اٹھی۔ خوشی کا موقع ہے، سارے لوگ انجوائے کر رہے ہیں، بچے خاص طور پر بہت خوش ہیں۔ بچے کا بس اس کو یہ کہ اس میں ذرا حفاظت کا پہلو نظر انداز نہ کریں، لوگ یہ کیمیکل والی ڈور وغیرہ استعمال نہ کریں، تو اس سے اچھا تہوار ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں کو بہت مزہ آ رہا ہے، اور یہ کہ بچوں کے لیے جو ہے 25 ایئرس یہ فیسٹیول دوبارہ یہ گرو اپ ہوا ہے، اور بچوں کے لیے کہ بہت اچھا ایک اوکیزن ہے، اور سب بچے ہمارے بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ کا بہت بڑا اور اچھا اقدام ہے، اور یہ انجوائمنٹ آپ کو پتہ ہے اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن پورے SOPs کے ساتھ اگر ہم اس کو تہوار کو مناتے ہیں تو یہ ویل اینڈ گڈ ہے ہمارے لیے، کہ آگے بھی یہ چیزیں آگے ہمارے یہ اوپن رہیں گی۔ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی بھی خوشی دیدنی رہی، بچے باجے بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے رہے۔ بڑوں کے ساتھ ساتھ نئی نسل بھی اپنی پہلی بسنت مناتے خوش دکھائی دی۔ میرے ٹائم میں یہ فرسٹ ٹائم ہے اور کافی انجوائمنٹ ہے، میں نے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی، مگر اب دیکھیے تو بہت اچھا لگا۔ یہ ہمارے سامنے تو بالکل کائٹنگ وغیرہ ختم ہو گئی تھی، اب جس طریقے سے اس کو دوبارہ بسنت کو منایا جا رہا ہے، آئی تھنک دس از اے ویری گڈ تھنگ۔ خیال رکھنا چاہیے تاکہ کسی کا بھی کوئی جانی نقصان یا کسی کے لیے کسی کا کوئی حادثات سے ہم لوگ محفوظ رہیں۔ SOPs کا لازمی سب خیال رکھیں۔ شہریوں کا کہنا تھا بسنت منائیں، لیکن حکومتی SOPs کا بھی خیال رکھیں تاکہ کسی کا جانی اور مالی نقصان نہ ہو۔ کیمرامین رضوان علی کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ باغوں کے شہر لاہور میں 2 دہائیوں بعد بسنت کی شاندار واپسی نے شہریوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیر دیں۔ صبح کے وقت اگرچہ آسمان ویران نظر آیا، مگر شام ڈھلتے ہی لاہور کا آسمان رنگوں کی بہار میں نہا گیا۔ مختلف رنگوں اور انداز کی پتنگوں نے فضا میں کوسے قزاں کا منظر پیش کیا۔ چھتوں پر بچوں، بڑوں، نوجوانوں اور لڑکیوں کی بڑی تعداد موجود رہی۔ کہیں پیچا لڑایا جا رہا تھا تو کہیں بو کاٹا کی صدائیں گونجتی رہی۔ کسی نے لائیو باربیکیو کا اہتمام کر رکھا تھا تو کہیں ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے جا رہے تھے۔ لاہور یہ 2 روز تک بسنت کا تہوار بھرپور جوش و خروش سے منانے کے لیے پرجوش نظر آئے۔ شہریوں کا کہنا تھا بہت عرصے بعد بسنت واپس آئی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے لاہور کی روح لوٹ آئی ہو۔ آج واقعی دل خوش ہو گیا ہے۔ 25 سال کا بہت بڑا گیپ ہے، بہت بڑا عرصہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ اپنی مصروفیات میں لگے تھے، لیکن اب ایک جو ہے نا موقع دوبارہ ملا لوگوں کو انجوائے کرنے کا۔ میں بڑے فخر سے بات کرتا ہوں کہ مریم ٹاور کی چھت پہ سب سے پہلا گڈا یہاں سے چھوڑا گیا ہے، اور یہاں سے سب نے لائیو یہاں سے چلایا ہے۔ میں سب میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے دوستوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا۔ خواتین بھی کسی سے پیچھے نہ رہی، خواتین نے بھی پتنگ بازی کی اور خوب لطف اٹھایا۔ بچے بھی ثقافتی تہوار کے رنگ میں رنگے نظر آئے۔ رنگوں، خوشی اور روایتی جوش سے بھرپور بسنت نے ایک بار پھر لاہور کو زندہ کر دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایسے تہوار نہ صرف ثقافت کو
को जिंदा रखते हैं बल्कि खुशियों के रंग भी बिखेरते हैं। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। बसंत की रौनकें अरूज पर पहुंच गई। घरों की छतों पर रौनकें, फैमिलीज का जोश व जज्बा दीदती हैं। ढोल और म्यूजिक की थाप पर भंगड़े भी डाले जा रहे हैं। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। बसंत की खुशियां अपने जोबन पर पहुंच गई। घरों की छतें सज गई। बच्चे बड़े सभी बसंत मनाने में मसरूफ हैं। म्यूजिक की धुन पर फैमिलीज के भंगड़े, खवातीन और बच्चे भी गुड़ियां उड़ाने में पेश हैं। खवातीन का कहना है कि वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया, जिनकी बदौलत चेहरों पर मुस्कुराहटें आ गई। बसंत का त्योहार तवील अरसे बाद रौनकें बखेर रहा है। मरियम नवाज के बहुत शुक्रगुजार, उन्होंने दोबारा ये बसंत किया, हमारे शहरियों को सबको खुश किया, भाइयों को हम भी बहुत खुश हैं। यही नहीं, लाहौर में फैसलाबाद, कराची, मुल्तान से रिश्तेदार शहरियों के घर बसंत मनाने आए हुए हैं। हम लोग फैसलाबाद से आए हैं स्पेशल बसंत मनाने के लिए। बेसिकली हम लाहौर के हैं, लेकिन शादी जो फैसलाबाद में हो गई, वहाँ से हम स्पेशल बसंत मनाने के लिए लाहौर। खवातीन हो या बच्चे फजा में पतंगे उड़ाकर खुशी महसूस कर रहे हैं। कैमरामैन शुएब सफदर के हमरा, आदिया नाज, सिटी 42। लाहौर की धड़कन आज मोची गेट में तेज सुनाई दी। बसंत पर बाजार किसी मेले का मंजर पेश कर रहा है। रंग, रौनक और हर तरफ बस डोर और पतंग की खरीदारी के लिए गैर मामूली रश रहा। सब पतंगों और डोर की खरीदो फरोख्त में मसरूफ हैं, मगर इस बार खुशी के साथ एक फिक्र भी है कि कीमतों में गैर मामूली इजाफा है। रश बहुत है, हाथ रोकने का वक्त नहीं, मगर कीमत सुनकर लोग चौंक भी जाते हैं। डोर का पिन्ना 35,000 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। 1.5 तावा गुड्डा 1500 तक पहुंच गया है। महंगी डोर ने शौकीनों को मुतबादिल ढूंढने पर मजबूर कर दिया है। कहते हैं महंगी डोर अब हमारी पहुंच से बाहर है। 400 रुपए का धागा लेने पर मजबूर हैं। थोड़ी जी पिछले लगे हजूम है ज्यादा, वो कहते जी भाई 200 दिए कहते लियाओ, कहते 500 दिए कहते लियाओ, कहते 1000 दिए कहते लियाओ, दे दो कि भी ना मुकदा। बस गुजारा ही होगा जनाब, जिसके साथ लगेगा बस फिर गया फितांग गया आपका गुड्डा जो है। वैसे भी देखा जाए तो गुड्डी कटती मजा आता है, गुड्डा करता है तो अपना मजा है, लेकिन अब काटने के लिए भजन आपको 35,000 रुपए खर्च करना पड़ेगा। मोची गेट की ये गहमा गहमी बता रही है कि बसंत का जोश कम नहीं हुआ। हाँ, कीमतों ने रंग जरूर कुछ हल्के कर दिए हैं। शहरियों का मुतालिबा है कि हुकूमत पतंग और डोर की कीमतों में तवाजुन के लिए इकदामात करे ताकि बसंत की खुशियाँ हर घर की छत तक पहुँच सकें। अलीरा में, सिटी 42। लाहौर में 2 दहाइयों के तवील वक्फे के बाद बसंत फेस्टिवल एक बार फिर रिवायती जोश व खरोश और रंगारंग तकरीबात के साथ मनाया जा रहा है। महकमा इत्तलात व सकाफत पंजाब के ज़ेर तमाम अंदरून दिल्ली गेट पर बसंत फेस्टिवल का इनेकाद। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब भी गुड्डी उड़ाने पहुंच गईं। शहर का आसमान रंग बरंगी पतंगों से सज गया, जबकि छतों पर डीजे, रिवायती खानों और अवामी खुशी के मनाजिर ने त्योहार की रौनक दोबाला कर दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बो काटा के नारे गूंजते रहे तो कहीं नौजवानों और बच्चों की जोश भरी आवाजों ने बसंत के रिवायती माहौल को जिंदा कर दिया। लाहौर की तारीखी फिजा एक बार फिर तहजीबी रंगों में ढल गई। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने दिल्ली गेट की छत पर बसंत की खुसूसी तकरीब सजाई, जहां सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और दीगर अरकान असेंबली ने भी बसंत मनाई। इस मौका पर दिल्ली गेट का दौरा किया गया और त्योहार की सरगर्मियों का जायजा लिया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने खुद पतंग उड़ाकर बसंत की खुशियों में शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि अगर 3 रोज बसंत का ये तजुर्बा कामयाब रहा तो आइंदा पंजाब भर में बसंत मनाई जाएगी। ये 1.5 साल की मेहनत है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, जो आज आप देख रहे हैं खुशियों में, रंगों में, अपनी सकाफत में झलक रही है। मुश्किल फैसला था, लेकिन उन्होंने सकाफत को ताला नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने सकाफत के लिए अपनी पूरी गवर्नमेंट, अपनी मशीनरी, अपने मिशन के मुताबिक उसको एक्टिवेट किया। और इस वक्त पूरा सिक्योरिटी का प्लान, ट्रांसपोर्ट का प्लान, 512 बसें, 6000 रिक्शे, ग्रीन बस, येलो बस, रेड बस, स्पीडो बस, सब फ्री है। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि बसंत फेस्टिवल पंजाब की सकाफती शनाख्त की बहाली की जानिब एक अहम कदम है। पूरे पंजाब से, बाहर के मुल्कों से लोग जो है वो बसंत मना रहे हैं और तमाम SOPs की जो है वो पूरी पासदारी के साथ लोग बसंत मना रहे हैं। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से जो है वो सब लोगों को बहुत मुबारकबाद और शुक्रगुजार हूँ। और इसी तरह हमें इसी जज्बे के साथ SOPs की पूरी जो है वो उनको फॉलो करते हुए बसंत मनानी है। मरियम औरंगजेब का कहना था कि शहरियों के लिए ट्रांसपोर्ट को मुफ्त रखा गया है, जबकि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42।
पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस में बसंत एक दिन हजार रंग के नाम से फेस्टिवल। लाहौरी लड़कियां परांदे, लाचे और झुमके पहनकर गुड्डी डोर के मुकाबलों के लिए पहुंच गईं। लड़कों से भंगड़ों का भी मुकाबला किया। बसंत के आगाज के साथ ही पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस भी बसंती रंग में रंग गया। बसंत एक दिन हजार रंग के नाम से फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। लाहौरी लड़कियां परांदे, लाचे और झुमके पहनकर गुड्डी डोर के मुकाबलों के लिए पहुंच गईं। लड़के लड़कियों ने ढोल की थाप पर भंगड़ों का मुकाबला भी किया। तलबा ने अपने आर्ट वर्क से कॉलेज के कॉरिडोर्स और छतों को सजाया। यूनिवर्सिटी को खूबसूरत रंगों से सजा दिया गया। बहुत एक्साइटेड है, हम सब ने डिफरेंट कलर्स पहने हुए हैं, सूट पहने हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यही सीन है, पहली दफा एक्सपीरियंस कर रहे हैं बसंत, तो बिल्कुल ही एक फ्रेश और वो माइंडसेट के साथ देख रहे हैं हर चीज़। इट्स बीन अ वेरी गुड इनिशिएटिव के पाकिस्तान में ये चीज़ रिवाइव हुई है, क्योंकि बाहर के पता लगना चाहिए कि हमारे यहाँ बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं और पंजाब की एक अपना कल्चर है, पंजाबी वही, हमें पता लगना चाहिए कि हम पंजाबी हैं। हम बसंत बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। फिलहाल तो हम पंजाब यूनिवर्सिटी के मुनक्किद किए गए त्यौहार में शामिल हुए हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरी जायज़ अंदाज़ा हो सकता है कि मैं कितनी पुरजोश हूँ इस बसंत को लेके। ऑल्दो हम जेंजी हैं, लेकिन हमारे जो हम बहुत पुरजोश हैं। बिल्कुल हमें ऐसा लग रहा है हम बहुत ही 90s वाला माहौल है, हमने वैसे ही गेटअप किया हुआ है। इस मौके पर वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गुलाम फरीद, समीना नसीम, असातिज़ा और तलबा ने भरपूर शिरकत की। तलबा की जानिब से बसंत के मौजू पर तस्वीरी नुमाइश का भी इनेकाद किया गया। नुमाइश में बसंत की समाजी और सकाफती अहमियत को उजागर किया गया। तलबा ने मुख्तलिफ अंदाज के गुड्डे और पतंगे तैयार करके कॉलेज की इमारत के अंदर और बाहर रंग बिरंगी पतंगों से दिलकश सजावट की, जो शुरका की तवज्जो का मरकज बनी रही। बसंत फेस्टिवल में शरीक मेहमानों और तलबा में पतंगबाजी के मुकाबले भी कराए जाएंगे। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ इमरान यूनस, सिटी 42। बात हो रही है बसंत मेले की, तो यहाँ आपको बताएं कि गुड्डी डोर खरीदने में नाकाम शहरियों की बड़ी तादाद लिबर्टी चौक पहुँच गई। लिबर्टी चौक पर दीगर अजला से आए शहरियों का भी रश खूब हल्ला गुल्ला किया जा रहा है। इस वक्त रुमेल इलियास हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी रुमेल, बताइएगा इस वक्त लिबर्टी चौक के क्या मनाजर दिख रहे हैं? लिबर्टी चौक में जी इस वक्त बसंत की जो रंगीनियां हैं वो अरूज पर हैं। हर तरफ यहाँ बसंत के जो रंग हैं वो बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी तादाद में शहरी जो हैं वो अहले खाना समेत बसंत की खुशियों को दुबाला करने के लिए लिबर्टी चौक पहुँच रहे हैं, जबकि बड़ी तादाद में दीगर शहरों से भी लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं बसंत को मनाने के लिए। एक तरफ जो गुड्डी डोर लेने में नाकाम शहरी थे वो यहाँ पहुँच रहे थे, अब दूसरी तरफ जो ऐसे शहरी भी यहाँ पर आए हैं जो हवा ना चलने के बायस अपनी छतों से उतर आए हैं और अब वो लिबर्टी चौक में आकर एंजॉय कर रहे हैं इस बसंत फेस्टिवल को। बात करेंगे ऐसे ही नौजवानों से जो मेरे साथ मौजूद हैं। बताइए जी, कहाँ से आए हैं आप, किस तरह से बसंत को मनाया जा रहा है? हम मुल्तान से आए हैं स्पेशल बसंत के लिए और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। 1-2 दिन यहीं पर ही हैं, इंशाल्लाह और इंजॉय करेंगे, बहुत मज़ा आ रहा है। बताइए जी, को गुड्डी डोर भी उड़ाई है आपने कि यहीं आए हैं? आई है गुड्डी डोर भी, तो अब यहाँ आ गए हैं? हाँ जी, उड़ा के इधर आ गए। क्या प्लान है आपके, किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं, इधर आ गए वहाँ के एंजॉय देख रहे हैं। बिल्कुल जी, लोग यहाँ पर आकर एंजॉय कर रहे हैं। फैमिलीज भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी मैडम, बताइएगा कहाँ से आप आई हैं और किस तरह से बसंत को मना रही हैं आप? We are from Riwas Garden, Lahore, and we are very happy to see all these glorious activities from CM Maryam Nawaz. We are very thankful to her. उन्होंने बहुत अच्छा इक़दाम किया है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी चीज़ें उन लोगों ने की हैं। स्पेशली आप लोगों ने पूरे लाहौर में ट्रैफिक के हवाले से देखा होगा, कोई बाइक आपको विदाउट रोड नज़र नहीं आई होगी। ये हमें लॉ एंड ऑर्डर हमें नज़र आता है, और ड्रोन्स का और लाइटिंग का और सब सिक्योरिटी इंतजाम भी बहुत अच्छे हैं। तो हमें आफ्टर 25 ईयर्स जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा प्रोटोकॉल के साथ बसंत मनाने का मौका मिला है। नाउ वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर नाउ फ्री फ्रॉम वरीज, सफोकेशन, फ्रस्ट्रेशन। सो दिस इज़ द मोटो ऑफ CM पंजाब। वो चाहती थी कि हम लोग खुश हों, अपने घरों से बाहर निकलें, एंजॉय करें। एक आम हाउस वाइफ भी है, या कोई गर्ल है, या कोई स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हैं वो सब आके एंजॉय करें, अपनी तमाम परेशानियों को भुलाकर अपने लाहौर की वही पुरानी जो रिवायात थी जो यहाँ पे लोग एंजॉय करते थे और हमारी रोशनियाँ थी इस लाहौर शहर की, हम सबको वो अब वापस नज़र आ रही हैं। और वी आर वेरी थैंकफुल टू हर। पूरी इसमें जो इंतज़ामिया है उन सब का बड़ा अच्छा किरदार है। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट कि फ्यूचर में भी हमारे मुल्क में ऐसे ही रोशनियाँ कायम रहें और ये फेस्टिवल आगे से आगे
प्रमोट हो। थैंक यू। बिल्कुल जी, यहाँ पर जो फैमिलीज आई हैं बसंत को मनाने के लिए, उनका एक तरफ जो जोश व जज्बा है वो दीदनी है, लोग जो है वो अहले खाना के हमरा इंजॉय कर रहे हैं। दूसरी जानिब शहरी जो है वो इजहार तशक्कुर भी कर रहे हैं, खासकर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के कहना है कि शहरी इजहार तशक्कुर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, रुमेल इलियास हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौरियों की तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी बसंत मनाने में पेश हैं। कसीर तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमरीका से लाहौर आ गए। लाहौर में रंगारंग बसंत का मेला 2 दहाइयों के बाद सजा है, ये कहना है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, आदिया नाज़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी आदिया, बताइएगा। बिल्कुल 2 दहाइयों के बाद शहर लाहौर का रुख किया है बसंत के खूबसूरत त्यौहार ने। यही वजह है कि शहर की फजाएं इस वक्त रोशनियों में नहाई हुई हैं। फजा में पतंगे बुलंद हैं और आसमान जो है वो रोशन है। और लाहौरिये सिर्फ इस फेस्टिवल को एंजॉय नहीं कर रहे, बल्कि मुल्क भर के साथ साथ दुनिया भर से ऐसे लोग जो कि बसंत के शौकीन हैं वो पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे हमरा मौजूद हैं। मोहम्मद वसीम मारूफ ताजर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा वसीम साहब, कौन सी ऐसी तलब थी जो आपको अपने मुल्क वापस खींच के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जी हम शुक्रिया अदा करते हैं मिस मरियम नवाज का, जिन्होंने ये 25 साल के बाद ये पाबंदी खत्म किया। आप बिलीव करें कि जी मैं 6 माह पहले वापस गया, ये फेस्टिवल का सुन के फिर मैं वापस आ गया। ठीक है। एक तो लोगों को रोजगार मिलेगा, अगर पूरे तरीके से SOPs का ये ख्याल करेंगे तो आई होप सो के नेक्स्ट एवरी ईयर इस तरह के फेस्टिवल देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है। और ये मेरा पसंदीदा, यानी कि मैं शुरू से बहुत पसंद थी मुझे बसंत ना, तो और क्या बोले, ऐसे ही चलता रहे तो बहुत अच्छा है जी। बिल्कुल ऐसा जरूर होता है। और उसकी बड़ी वजह ये होती है कि अगर आप जो SOPs गवर्नमेंट की जानिब से आपको कही जाती हैं, अगर उसको फॉलो किया जाता है तो डेफिनेटली ये त्यौहार जो है वो मजीद तवालुत इख्तियार करेगा। और कल मरियम औरंगजेब साहिबा की जानिब से भी अनाउंस किया गया है कि अगर ये 3 दिन खुशअस्लूबी से गुजर जाते हैं तो मार्च के आखिरी हफ्ते दोबारा बसंत जो मनाई जाएगी। क्या कहेंगे? मेरे कजन भी आए हैं जी। मैं बड़ा मरियम नवाज साहब का बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये त्यौहार ऑलमोस्ट 20 ईयर से ना था, काफी टाइम से बंद किया होता था, तो ओपन हो गया, अब खुशी हो रही है। और स्पेशली हम इस इवेंट के लिए पाकिस्तान आए अमेरिका से, और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं CM पंजाब साहिबा के। सर क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये ऐसा फेस्टिवल था जो 25 साल के बाद हुआ है। खुसूसन पूरे पाकिस्तान से सब लोग लाहौर में जमा हुए हैं और इतना फेस्टिवल शानदार और ब्यूटीफुल फंक्शन हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और सब लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हमारे ओवरसीज भाई भी आए हुए हैं सारे, और पूरे पाकिस्तान से खुशियां ही खुशियां हैं चारों तरफ। तो अगर आपके वाली बात है कि अगर हम SOPs के मुताबिक चलेंगे तो शायद ये हमारा कंटिन्यू हो जाए प्रोग्राम। तो जी हम अपनी CM साहिबा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, और आप खुसूसन सिटी 42 का जो इतनी अच्छी कवरेज कर रहा है। तो मेरे ख्याल से सारा फेस्टिवल जो है कंटिन्यू रहना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। बिल्कुल फेस्टिवल जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, और ये फेस्टिवल उसी सूरत कंटिन्यू रह सकता है जब आप गवर्नमेंट के तमाम इक़दामात को सराहते हुए उनके साथ कोऑपरेशन करते हैं। सो वज़ीर आला का, उनकी काबीना का शुक्रिया अदा इसीलिए किया जा रहा है कि ये जो इस वक्त पुररौनक माहौल है, चेहरों पर जो मुस्कुराहटें हैं, इनकी ठीक है। बहुत शुक्रिया आदियाना अपडेट करने के लिए। दिन गुजर गया, लाहौरियों का शौक खत्म नहीं हुआ। गुलशन रावी में शायकीन बसंत मनाने छतों पर उमड़ आए। बसंत के बहाने छतों पर महफिलें सज गईं, बोक आटा की सदाएं गूंज रही हैं। तफसीलात जानते हैं, सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद, बताइएगा शहरी किस तरह से बसंत को एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल 3 रोज़ा बसंत मेला एक रोज़ तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन शायकीन का जो शौक़ है वो ताहाल ख़त्म नहीं हुआ। और गुज़श्ता रात से ही लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर, बल्कि बेशतर कहीं मुकम्मल लाहौर के अंदर जो है वो बसंत बाजी का अमल है वो जारी है। और AJ कार्गो इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम जो गुलशन रावी में मेला सजाया गया है, उसमें आज एक दिन मुकम्मल होने के बाद जो साथी हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, वो जोक दर जोक इस इवेंट का हिस्सा है वो बन रहे हैं। कुछ 2 साथी फैसलाबाद से, पेशावर से भी आई से बात करेंगे। जी सर, कहाँ से आए हैं और बसंत मेला लाहौर में जो सजाया गया है क्या कहेंगे, कैसे जज्बात हैं? 20-25 साल कबल भी बसंत मनाते रहे हैं आप, तो इस दफ़ा कैसा आप इफेक्ट देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ लाहौरियों को जिनको ये बसंत का इवेंट मिला है। हम तो ख्वाहिश करते थे कि फैसलाबाद और बाकी शहरों को भी मिलेगा। मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इक़दाम है।
اور لاہوریے جو ہیں انہوں نے اس کو منایا بھی صحیح طریقے سے. پتہ لگ رہا ہے کہ جناب بسنت منائی جا رہی ہے. آپ جدھر بھی جاتے ہیں زندہ دلانے لاہور نظر آتے ہیں کہ جناب بسنت منا رہے ہیں. چھتوں کے اوپر جو زندہ دلائیں لاہور ہیں ان کی موجودگی ہے وہ بتاتی ہے کہ بسنت جو ہے وہ اس کا تہوار منایا جا رہا ہے. کچھ مہمان جو ہیں وہ پشاور سے بھی آئے ہیں, سے بات کریں گے. جی سر, کہاں سے آئے ہیں اور کیسا تہوار لگ رہا ہے آپ کو؟ ایچ اے کارگو کے زیر اہتمام آج جو ایونٹ منایا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں کے پی کے سے تعلق رکھتا ہوں اور ہم خرم بھائی کی دعوت پر اسپیشل یہ تہوار یہاں پہ منانے کے لیے آئے ہیں اور ان کا بڑا تہہ دل سے شکر ہے. انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا اور ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے اور تمام لوگ بڑے ایس او پی کے مطابق یہاں پہ اپنا پروگرام کر رہے ہیں. ایسے ہم نے سنا تھا کہ لاہور یہ بڑے زندہ دل لوگ ہیں اور وہ میں نے صحیح سنا تھا, میں غلط نہیں تھا. پشاور سے مہمان ہیں وہ بھی لاہور میں بسنت میلے کا حصہ ہے وہ بنے ہوئے ہیں اور یہی کہنا ہے کہ جیسا تہوار لاہور میں منایا جا رہا ہے ایسا ہی دیگر صوبوں میں دیگر شہروں میں بھی تہوار ہونا چاہیے تاکہ دیگر جو لوگ ہیں علاقائی لوگ ہیں وہ بھی اس تہوار سے لطف اندوز ہے وہ ہو سکے. اور ایس او پیز کے مطابق آج ایک روز ہے وہ مکمل ہو چکا اور دوسرے روز کا آغاز ہے وہ ہو چکا ہے. بہت شکریہ سعید احمد اپڈیٹ کرنے کے لیے. شہر میں بسنت کا میلہ پورے جوش و خروش کے ساتھ جاری ہے. شام نگر سمیت گردونواں کے علاقوں میں چھتوں پر رنگا رنگ تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں. غیر ملکی مہمانوں نے بسنت کی تقریبات میں شرکت کر کے ثقافتی رنگوں کو مزید نکھار دیا ہے. تفصیلات جانتے ہیں آفاق نذیر سے. جی آفاق, بتائیے گا. دیگر علاقوں کی طرح شام نگر میں بھی بسنت کا فیسٹیول پورے جوش و خروش کے ساتھ یہاں پر منایا جا رہا ہے. آسمان یہاں پر رنگین ہے. مختلف شہروں سے نہ صرف بلکہ امریکہ سے بھی یہاں پر جو فیملی ہے وہ فیسٹیول کو منانے کے لیے یہاں پر پہنچی ہے. چھتوں کے اوپر خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. باربیکیو یہاں پر لگایا جا رہا ہے. ڈیکس یہاں پر لگائے گئے ہیں جس پر رقص بھی کیا جا رہا ہے. فیملیز یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. بتائیے گا کہاں سے آپ آئے ہیں اور کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ فیسٹیول؟ ہم آئے ہیں جی امریکہ سے اور اس فیسٹیول کے لیے اسپیشلی آئے ہیں 7 ڈیز کے لیے, اونلی 7 اور 8 ڈیز. اور سب سے زیادہ اسپیشل یہ تھی کہ 20 سال کے بعد مجھے تو یہ چانس مل رہا ہے کہ میں یہ چیز ہاتھ میں پکڑ سکوں پاکستان کے اندر. تو اس وجہ سے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے. کل بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی جب چاند رات تھی ایک قسم کی. لبرٹی ہم گئے, وہاں پہ مریم نواز نے جو بہترین قسم کے سارے ارینجمنٹس کیے ہیں, دیٹ واز ویری فینٹاسٹک. اور آج ہوا بھی اس ٹائم پر کم ہے, اسٹارٹ ہو گئی ہے چلنا, تو امید ہے کہ ہم زیادہ انجوائے کر سکیں گے. وی ہیو پلینٹی آف ڈیز, 2 سے 3 دن ہے ہمارے پاس, ہم اچھا سے کھل کے انجوائے کریں. آپ کہاں سے آئے ہیں اور کیسا جا رہا ہے فیسٹیول؟ قصور سے آیا ہوں اسپیشل بسنت منانے اور بہت اچھا جا رہا ہے. انجوائے کر رہے ہیں, سب کزن وغیرہ بھی آئے ہوئے ہیں, بڑا اچھا لگ رہا ہے. خوب انجوائے کیا جا رہا ہے. خواتین کی بھی بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے, ان سے ہم بات کرتے ہیں. ماں جی بتائیے گا, سالوں کے بعد یہ فیسٹیول لوٹا ہے تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ تہوار دیکھ کے, خوشیاں دیکھ کے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے یہ آج. تو کیا کیا انتظامات کیے ہیں پھر آپ نے میزبانی کے لیے؟ ماشاءاللہ باربیکیو کیا تھا بچوں کے لیے, سب کے لیے, مہمانوں کے لیے. امریکہ سے بھی گیسٹ آئے ہوئے ہیں ہمارے اور ادھر سے بھی سارے اکٹھے ہوئے ہیں. میڈم آپ بتائیے گا, آپ کون سی سٹی سے آئی ہیں یہاں پر بسنت کا تہوار سیلیبریٹ کرنے؟ جی ہم سائیوال سے آئے ہیں اور بسنت انجوائے کرنے آئے ہیں, لیکن ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہوا چل پڑے اور پھر ہم جو ہے نا بسنت کو مزید انجوائے کر سکیں. میڈم آپ کیا کہیں گی, فیسٹیول اتنے سالوں کے بعد لوٹا ہے, کیا آپ نے تیاری کی ہے اور کیسا انجوائے کر رہی ہیں؟ ہم لوگ بھی انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں, ہم ادھر سے آئے ہیں. کس سٹی سے آئی ہیں آپ؟ یہ شادرہ کی طرف سے ہم لوگ آئے ہیں. میڈم آپ لاہور سے؟ ہم لاہور سے ہی ہیں. بالکل جی, مختلف شہروں سے یہاں پر لوگ جو ہیں وہ بسنت کا فیسٹیول منانے کے لیے آئے ہیں, خاص کر امریکہ سے آئے ہیں اور بھرپور یہاں پر انجوائے کیا جا رہا ہے. باربیکیو سے جو ہے وہ محظوظ ہو رہے ہیں اور بھرپور یہاں پر فن کیا جا رہا ہے. جی بہت شکریہ آفاق نذیر اپڈیٹ کرنے کے لیے. شہری فیملیز کے ہمراہ بسنت منانے کے لیے چھتوں پر جمع ہو گئے. بسنت کی دستک نے پورے شہر کو ایک ہی رنگ میں رنگ دیا. تاجر رہنما ذیشان ملک نے بھاٹی گیٹ مریم ٹاور پر بسنت کی رونق سجا دی. ذیشان ملک نے بھی گڈا اڑایا. اس وقت طلا اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید ان سے جانتے ہیں. جی طلا بتائیے گا. جی بالکل, اس وقت میں باٹی گیٹ پر موجود ہوں. مریم ٹاور کے اوپر تاجر رہنما ذیشان سہیل ملک کی جانب سے ایک بڑا جشن کا اہتمام کیا گیا اور رونق سجائی گئی. فیملی موجود تھی ان کی اور ان کے ساتھ ساتھ دوست احباب اور تاجروں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی اور خوب ہلا گلا ہوا, ڈور گڈی اڑائی گئی, اسی کے ساتھ ساتھ کھابے بھی کھائے گئے اور یہاں پر قوالی کا بھی اہتمام کیا گیا. سب سے پہلے اگر میں ان کے والد صاحب سہیل ملک سہیل صاحب سے بات کروں تو سر بتائیے گا کیسا تھا آج کا ایونٹ اور کیا دیکھتے ہیں, کیا پیغام دے رہے ہیں؟ پیغام تو یہی ہے کہ بڑی محبت سے, بڑی پیار سے یہ ٹائم گزارنا چاہیے تاکہ آگے بھی ہمیں یہ موقع ملے. تو ایس او پی کے تحت کام کرنا چاہیے. شکر ہے
कि अल्लाह ताला ने ये टाइम अच्छा गुजार दिया है, लेकिन मैंने सुना है कि इस्लामाबाद में कोई हादसा हुआ है, उसका मुझे दिली दुख है। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम दे। और यहाँ जो पसंद के हवाले से है तो पसंद खुशियों का दिन है, सारे दोस्त अब आपको चाहिए कि मिल के ये काम किया जाए। बिल्कुल ठीक है। ज़िशान भाई आप बताएं क्या कहेंगे, क्या क्या था इसके अंदर और फैमिली को साथ लेके आए, चलें आप क्या कहेंगे? देखिए ये फैमिली फेस्टिवल था, आज एक दिन तो मुकम्मल हो गया, 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। कल 12:05 में ये इवेंट शुरू हुआ था, मेरा ख्याल है 12:15 हो गया। तो मैं समझता हूँ ये 13 घंटे का जो 25 घंटे का जो इवेंट हुआ है, तो मैं समझता हूँ ये इवेंट बहुत अच्छा उड़ाया गया है। जो कल वाला जो इवेंट है हमारा, वो हमने पोस्टपोन इसलिए कर दिया कि गवर्नमेंट पंजाब ने जो वहाँ पे हादसा हुआ है वो हम मजम्मत करते हैं, हमारी पूरी जो फैमिली है उसके साथ मजम्मत करती है। हमने ये इवेंट को क्लोज़ करने का सोचा कि आज ये इवेंट सुबह क्लोज जब करेंगे तो कल जो इवेंट हो जो हमने इसका तैयारी की हुई थी वो इवेंट मैंने अपने दोस्तों को पैगाम दिया है कि वो इस्लामाबाद के हादसे की वजह से उसको हमने पोस्टपोन कर दिया। बिल्कुल ठीक है। इमरान भाई मौजूद हैं। इमरान भाई क्या कहेंगे, गुड्डी उड़ाई आपने, कैसा लग रहा है आपको, क्या दोबारा से पसंद बहाल हुई है? जी गुड्डी उड़ाने का तो मौका नहीं मिला, हवा ही नहीं चली, बाकी उस तरह बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ है, कहते हैं एंजॉय किया है, कहते हैं कॉल थे, डीजे सिस्टम था, कहते हैं बाकी खाने स्टॉल लगे हुए थे। बस गुड्डियाँ काफी उड़ाई हैं आपने, कैसे लगे दोस्त? जी कल हमने बहुत उड़ाई है, कल बहुत अच्छी हवा थी, मगर आज हवा ने कहते हैं हवा ने साथ नहीं दिया। ठीक है, अब्दुल्ला सुहेल मलिक, उनसे भी बात करते हैं। भाई सर आप बताइएगा क्या कहेंगे अच्छा साहब, क्या कहेंगे मलिक अर्शद साहब? जी माशाल्लाह, सबसे पहले मैं ये बात कहूँगा कि अंदरून शहर में ये सबसे बड़ी छत है, 7 कनाल के ऊपर मुश्तमिल है। मैं इतना बड़ा पंडाल देख कर मैं हैरान हो गया हूँ कि 1500 कार्ड शानी ने इशू किया था, 1500 कार्ड इशू करने के बावजूद 1500 बंदा उसके अलावा आ गया। 3000 बंदे की गैदरिंग ऐसे लग रही थी, ये 7 कनाल की छत नहीं लग रही थी, ये लग रही थी 2 मरले की छत। मैं तो हैरान हो गया कि इतना हजूम, जेंट्स तो थे लेकिन लेडीज बहुत ज़्यादा थी। लेडीज़ ने बहुत इंजॉय किया है, नौजवान नस्ल ने बहुत इंजॉय किया है। ये 3 दिन का हमने इवेंट बनाना था, जो इस्लामाबाद ये वाक़या हो गया उस वजह से हमने ये सुबह ये काम पोस्टपोन कर देना है, क्योंकि हम उनके साथ शाना बशाना है कि ये बहुत बड़ा सानिया है। अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे। तो मैं आगे ये कहता हूँ कि जो नौजवान नस्ल है वो कानून के मुताबिक अपना चले, SOP के तहत अपना काम करे, ताकि गवर्नमेंट आगे भी हमें मौका दे। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो गुफ्तगू करते हैं, पहले भाई आपसे कर लेते हैं, आप बताइएगा कि कैसा लगा है, गुड्डी उड़ाई है, पहली बार उड़ाई है? हाँ जी। कितनी उड़ाई हैं, किसी की कोई वो काटी है? यहाँ पे अगर कैमरे की तरफ मुंह कर लें और मुझे बताइएगा। 2 काटी हैं और बाकी सारी कटवाई हैं। बाकी सारी कटवाई हैं। अब्दुल्ला भाई से भी बात करते हैं। अब्दुल्ला सुहेल मलिक कैसे हैं और कैसे आपने गुड्डी काटी है, क्या किया है? जी मैं ठीक हूँ, मैंने गुड्डी काटी तो नहीं है, कटवाई है। कितनी कटवा दी गुड्डियाँ? जितनी उड़ाई है जितनी उड़ाई उतनी कटवा दी, ये भी मजा है जी। बिल्कुल ठीक है। आखिरी हम पैगाम देख लेते हैं। छोटी बच्ची यहाँ पर आई है, आप क्या कहेंगी, कैसे बसंत आपने देखी है, मजा आया, एंजॉय किया? जी बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया जी, बच्चों की जानिब से जो कि किया जा रहा है। आप बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो शहर की मेहमान नवाजी है, अगर उसको हम देखें तो मलिक साहब का घर, शानी मेरा छोटा भाई है, इन सब की जो ये रवायत है दोस्तों को इकट्ठा करने की, मैं समझता हूँ ये जिंदा दिलाने लाहौर का एक पैगाम है पूरे पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ठीक है भाई, आप बताएं कैसा लग रहा है आपको आज मरियम टावर की छत पे जो ज़िशान सुहेल मलिक साहब की दावत पे आप यहाँ पर आए हैं, कैसे कहेंगे? एक बात बताता चलूं, जो बारिश का पहला कतरा था वो मेरे 2 भाई थे, कि ये भाई तैयब मलिक था और एक मेरे सामने खड़े हैं वो हंस रहे हैं, एक वो थे। ये पसंद का पहला जो कतरा डाला था, ये 2 भाइयों ने डाला था। तो मैं समझता हूँ ये कतरा करके यहाँ पे आज जो जितना हजूम यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, ये सब इनकी भी काबिश है। फिर तो ये सुनना पड़ेगा, आप बताएं कैसे? जी ज़िशान सुहेल मलिक की वजह से सब कुछ हुआ है जी, और आई थिंक बड़ा सॉफ्ट इमेज
ہم نے اپنی کنٹری کا، اپنے پنجاب کا، اپنے لاہور کا اور اپنی فیملی کا پریزنٹ کیا پوری دنیا کے سامنے، بیکاز صرف لاہور سے لوگ نہیں ہیں، پوری دنیا سے، دبئی سے، لنڈن سے، جرمنی سے یہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو آئی تھنک ہماری فیملی نے بڑا اچھا سب کو انٹرٹین کیا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم اسی طرح بڑے دل کے ساتھ اور انکل ملک سہیل کے ساتھ، ذیشان کے ساتھ ہم اسی طرح ایونٹس کرتے رہیں گے اور سب کو اچھی فیملی انٹرٹینمنٹ دیں گے. جی فیملی انٹرٹینمنٹ دیں گے، بالکل ٹھیک ہے. جی جی یہ فاطمہ ننھی سی بچی ہے، آپ بتائیں پہلی بسنت ہے آپ کی، کیسا لگ رہا ہے؟ کیا 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 ہے آپ نے؟ مجھے بتائیں، سارا کچھ بتائیں. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، میں نے پتنگ اڑائی، سب کچھ کیا. پتنگ پھر کسی کی کاٹی ہے؟ اپنی کٹ کی پتنگ؟ بالکل جی. یہاں پر جو سر ملتان سے ہیں، بتائیے گا کیا کہیں گے سر؟ پہلے سب سے پہلے تو میں آپ کو سب کو سلام کروں گا. السلام علیکم. بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارا جو پنجاب کا کلچر تھا، جو ہماری پہچان تھی، وہ آج سے 20 سال پہلے ڈیڈ ہو چکی تھی، اور ہماری سی ایم صاحبہ نے اپنی ایفرٹس کے ساتھ اس کلچر کو دوبارہ لائیو کیا ہے. تو میں مبارکباد دوں گا اپنے ملک سہیل صاحب، ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں. ملک ذیشان صاحب بہت ہی اچھا انہوں نے یہاں سیلیبریٹ کیا ہے اور ڈیکوریٹ کیا ہے، اور یہاں میں آنے کا انہوں نے موقع، اپرچونیٹی جو ہے نا پرووائڈ کی ہے. کیمرہ بالکل جی دکھا دیتے ہیں ہم، اگر ہمارے کیمرہ مین ندیم بھٹی پیچھے اگر دکھا دے یہاں پر، تو پیچھے جو قوالی کا سیٹ اپ ہے، اور اس کے پیچھے اگر میں بتاؤں تو کھابے جو کہ بنائے جا رہے تھے لائیو یہاں پر، اور بہترین سا گیٹ ٹوگیدر ہوا ہے جو، اور اس کے بعد جو لائیو جو سارا سسٹم چل رہا ہے یہاں پہ کھانے پینے کا، اور شو بھی ہے لائیو، اور مکمل طور پر یہاں پر ایس ایم ڈیز لگائی گئی ہیں، لائٹیں لگائی گئی ہیں، اور یہاں پر بہترین سا جو پروگرام ہے وہ کروایا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ طلحہ اشرف اپڈیٹ کرنے کے لیے. ہمیں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ راجپوت ہاؤس مزنگ میں جشن بسنت کے حوالے سے تقریب یاروں دوستوں کی محفل نے خوب رنگ جما دیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں ابراہیم قریشی سے. جی ابراہیم بتائیے گا. جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں مزنگ میں. اگر رات کے جو ہے وہ 12 بجے کے بعد جو ہے وہ بسنت کا دوسرا روز جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور ابھی بھی جو ہے وہ لوگ بڑی تعداد میں بسنت فیسٹیول کو انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں. دوست احبابوں کی جو بیٹھک ہے وہ آج بھی لگی ہوئی ہے، اور رات گئے اس پہر جو ہے وہ آج بھی بسنت جو ہے وہ اوڑھ رہی ہے، اور لوگ جو ہے وہ نہ صرف مختلف قسم کے خوابوں سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں، بلکہ بسنت فیسٹیول سے بھی جو ہے وہ لطف اندوز ہوتے نظر آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے وسیم بھائی، ان سے جانتے ہیں. وسیم بھائی مجھے بتائیے گا کہ آج کا دن اور کل کا دن جو ہے وہ کیسے انجوائے کیا آپ نے، اور کس طرح سے جو ہے وہ آگے والے دنوں کو پلان کر رہے ہیں کہ اس بسنت کے فیسٹیول کو جو ہے وہ بڑے جوش و جذبے سے؟ 20 سال بعد یہ ایونٹ آیا ہے، تو ہم نے آج راجپوت ہاؤس کے اندر، ہمارے بڑے ہیں رانا سلیم صاحب ہیں، رانا وسیم صاحب ہیں، رانا یوسن صاحب ہیں، تو ہم نے سارے دوستوں کو یہ مدعو کیا ہے. تو اور وہاں پر کل بھی ہم نے جو ہے نا دوستوں کے لیے مختلف نواں اقسام کے کھانے پکائے. جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ باربیکیو تیار ہو رہا ہے، اسپیشلی شکار کے لیے تلور تیار ہو رہے ہیں، مختلف نواں اقسام کے میٹھے بن رہے ہیں، پتنگ بازی کر رہے ہیں، بچے ہیں، فیملیز ہیں، دوست ہیں، سب انجوائے کر رہے ہیں. اور ہم اسپیشلی جو ہے نا دل کی عطا گرائیوں سے میڈم سی ایم کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جو انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اور یہ ایک خوشی کی لہر جو ہے وہ ہمارے اندر دوڑی ہے، اور سارے دوست احباب جو ہیں وہ بہت خوش ہیں. آپ دیکھیں کہ خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اور ایسا موقع ملا ہے کہ ابھی ڈرم والے آ رہے ہیں، دوست آئے جا رہے ہیں، جائے جا رہے ہیں، ایک جشن کا سما ہوا ہے. مجھے بتائیں کہ کتنے پیچھے آپ نے لگا لی ہیں، کتنی گڈیاں کاٹ لی ہیں؟ پیچھے جی شام تک آپ تھوڑی دیر پہلے دیکھے تھے ہوا کا بڑا زبردست وہ جھکاؤ چل رہا تھا، تو کافی فلائنگ چل رہی تھی، تو بچوں کے بھی کمپٹیشن ہوئے، فیملیز کے بھی ہوئے، آس پاس چھتوں پہ یہ پلازے ہیں، تو بڑا مقابلہ چلتا رہا، بڑا وہاں پہ جوش و جذبہ تھا. ابھی تھوڑی سی ہوا کم ہوئی ہے، تو بس کھانا کا ٹائم تھا، تو ابھی ریسٹ کا ٹائم شروع ہو گیا. میوزک سے انجوائے کر رہے ہیں، قوال بھی آئے ہوئے ہیں، فنکار بھی آئے ہوئے ہیں، سب لوگ بڑا انجوائے کر رہے ہیں. جی بالکل، یہ ہے اہل لاہور زندہ دلانے لاہور کی ایک روایت شان کہ وہ بسنت کے اس فیسٹیول کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں، اور یہ محفل اور یہ تمام تر رونقیں جو ہے وہ اگلے 2 دن بھی جو ہے وہ جاری ہیں. بہت شکریہ ابراہیم قریشی. شہری بسنت کے حوالے سے خوب انجوائے کر رہے ہیں. دوسری جانب جشن بسنت کا پہلا دن لاہور کا آسمان رنگ برنگی پتنگوں سے سج گیا. پیپر مارکیٹ میں باؤ محمد بشیر کے سجائے گئے جشن بسنت میں صوبائی وزراء شہر کی معروف کاروباری شخصیات میں آئیں.
20 साल बाद लाहौर में जश्न बसंत जुमा की नमाज से फारुग होकर ताजर बरादरी ने जश्न बसंत का आगाज किया। मारूफ कारोबार शख्सियत बाऊ मोहम्मद बशीर की जानब से सजाए गए बसंत फेस्टिवल में सूबाई वज़रा बिलाल यासीन, मियाँ मुजतबा शजाउर रहमान, वाइस चेयरमैन LDA मियाँ मरगूब और सार्क चैम्बर के नायब सदर मियाँ अंजम निसार शहर की मुमताज कारोबारी शख्सियात के हमरा जश्न बसंत में शरीक हुए। अभी 3 दिन बाकी है। अब मेरी ये असेसमेंट है कि जो लाहौरी है ना, ये अपने मिजाज खुद रखते हैं। जिससे कहते हैं ना कि जी मौसम ने करवट ली, तो लाहौर ने भी करवट लेनी है। तो आज इवनिंग देखिएगा, कल की इवनिंग पूरी पीक पे होगी। ये क्रेडिट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट को जाता है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज शरीफ साहब को जाता है कि आज ये हमारी बसंत जो है वो दोबारा से रिवाइव हुई है। और आज लाहौर में शायद ही कोई ऐसी छत हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे लोग खुशियाँ नहीं मना रहे। एक इंतहाई डिसीजन है मरियम नवाज शरीफ साहब का, उन्होंने आज जिंदा दिला ने लाहौर के दिल जो है उनको खुशियों से भर दिया। ये बहुत एक अच्छा फेस्टिवल हो रहा है और CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने भी एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है। बहुत सारी गवर्नमेंट ने कतराया है कि फैसला ना ले, लेकिन इन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया और मैं समझता हूँ कि अहले लाहौर जो है इसे जो है ना एंजॉय कर रहे हैं। मेजबान बाऊ मोहम्मद बशीर ने जश्न बसंत के शुरका की पुरतकल्लफ खाने से तवाज़े भी की। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। सेक्टर M8 लेक सिटी में टाउन हाउसेस के नए प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखने की तकरीब के मेहमान खुसूसी CEO लेक सिटी गौहर एजाज थे। CEO लेक सिटी डेवलपर सुल्तान गौहर ने खुसूसी शिरकत की। लेक सिटी M8 में टाउन हाउसिंग प्रोजेक्ट इत्तफाक ग्रुप, नाडा और CPMS पार्टनर्स के इश्तराक से शुरू किया गया। इस मौका पर CEO लेक सिटी गौहर एजाज का कहना था कि आज लेक सिटी ने एक यूनिक प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। हमने ऐसे मंसूबे मुतारिफ कराए जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। लेक सिटी बेहतरीन लिविंग स्टैंडर्ड लेकर आया। लेक सिटी एक लग्जरी ब्रांड है। हमने हमेशा इसको गोल्फ स्टेट और जो है ऐसी प्रोडक्ट्स मुतारफ़ कराई जो कि शायद पहले पाकिस्तान में नहीं थी। गोल्फ लिविंग, मैंशंस, हाई एंड लग्जरी अपार्टमेंट्स, 1 कनाल, 2 कनाल, 4 कनाल के प्लॉट्स। बट लेक सिटी सिर्फ जो है वो अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का ब्रांड नहीं है। लेक सिटी हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए। दौरान तकरीब टाउन हाउसिंग के खूबसूरत नक्शे, जदीद घरों के डिजाइन पेश किए गए। लेक सिटी के सीनियर मैनेजमेंट और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफसरान भी तकरीब का हिस्सा बने। गौहर एजाज का कहना था 5 मरला का घर 3 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। यंग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट ये घर अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान में मोर्गेज फाइनेंस का तस्वुर नहीं। ऐसे अफराद के लिए लेक सिटी का टाउन हाउसेस प्रोजेक्ट बेहतरीन ऑप्शन है। मिडिल क्लास जो है वो रिटेलर, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, वो 3 करोड़ भी अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारे मुल्क में मॉर्गेज फाइनेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है। पूरी दुनिया में मॉर्गेज फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है कि आप जो है वो 10 साल और 20 साल पे अपनी चीज़ें खरीद सकते हैं खाली इंस्टॉलमेंट देके। CEO लेक सिटी का कहना था मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग वक्त की अहम जरूरत रही है। इसी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए ग्राउंड+2 टाउन होम्स का तस्वुर मुतारिफ कराया गया। हमने ग्राउंड+2 टाउन होम्स प्लान किए। 1 यूनिट की कीमत 1 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपए तक रखी गई है। बगैर सूद 10 साल तक घर का कर्ज दिया जाएगा। 6 यूनिट्स जो एक ब्लॉक में आ जाए, सब 1000 फुट के 2 बेडरूम के बेहतरीन जो है वो टाउन होम्स प्लान कर दिए गए और उसकी कीमत जो है जो रखी गई वो 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 20 लाख तक की कीमत रखी गई। तो ये जो सिर्फ 500 प्लॉट थे 10 मरले के, हमने उस 500 प्लॉट 10 मरले को 3000 यूनिट्स में उसको कन्वर्ट कर। टाउन हाउसिंग प्रोजेक्ट 3000 टाउन होम्स पर मुश्तमिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका। ये मंसूबा मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल लिविंग समेत एक अहम कदम साबित होगा। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ उस्मान खादिम, कंबो, सिटी 42। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन की 7वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस PC होटल में जारी है। अंदरूनी बैरून ममालिक से तिबी माहिरीन की बड़ी तादाद शरीक है। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन की 7वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस PC होटल में जारी है। कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब प्रोफेसर मोहम्मद अली ने कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को सराहा। This society, the services is bringing people together. There are international scholars, doctors who are here. I welcome you to Pakistan. प्रोफेसर अजीजुर रहमान ने कहा, कॉन्फ्रेंस में तिब के मुख्तलिफ शोबों में होने वाली जदीद तहकीक मुतारिफ करवाई जा रही है।
My sincere apologies to those whose name I have forgot to mention. I would also like to acknowledge the invaluable support of our partners in pharma, because we can't really do anything without their support. प्रोफेसर मुनीर अहमद अजहर ने कहा, कॉन्फ्रेंस में नौजवान डॉक्टर्स को सीखने का मौका मिलेगा। I think nothing to say after this visuals, and you have seen its transformation which is materialized on the conferences. It is the 7th of its type, 6 we have already enjoyed, and their mentor-mentee program, which is again for the grooming of professionals, and more so our mid-summer meetings. We are not leaving the summer even, so we used to invite people to the hilly area and then enjoy it. प्रोफेसर आफ्ताब मोहसिन ने बरतानिया, श्रीलंका, यूएई समेत बैरून मुमालिक से आए मंदोबीन को खुश आमदीद कहा। Now constitute a very strong leadership all across Pakistan, and it is all because of you, and we owe it all to all of you. It is in fact us who have done it. प्रोफेसर जावेद अकरम ने कहा, सोसाइटी का मकसद मरीजों को जदीद इलाज मुआलजे की फराहमी है। Institutes are strengthened by good traditions, and if institutes are made strong, the country gets all the strength. And who knows it more than Muhammad Ali, my dear friend, my brother. We have travelled far and wide as fellow Vice Chancellor. So that is the reason that once you are committed, then give that commitment 100%. प्रोफेसर महमूद अली मलिक ने शानदार कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को सराहा। Now it has all changed. I come and attend these conferences to come and learn. And each time I come, I go back with more information in my mind. And I am very grateful to my friend, Dr. Javed Akram, and my friend on my right hand side to invite me to such conferences. And I am very grateful that we will keep on. इस मौके पर PSIM कॉन्वोकेशन का भी इनेकाद किया गया, जिसमें प्रोफेसर एंड्रयू एल्डर, प्रोफेसर वर्जीनिया हेड, डॉक्टर कैरी बेकर, डॉक्टर मैथीज, श्रीलंकन डॉक्टर फर्नांडो, डॉक्टर नमल वजह सिंह और सदर रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस प्रोफेसर मुमताज पटेल और प्रोफेसर सईद खोखर को एजाजी फेलोशिप दी गई। शोबा तिब में नुमाया खिदमात पर मुल्क भर से तिब्बी माहिरीन को भी फेलोशिप दी गई। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 42 के साथ।